Hello everyone, here's the Smart Buddy. I'm going to start a new chapter of class 12th Biology NCRT chapter number 1. So the first topic of the biology is the first chapter and the first topic of this chapter is a lifespan. So what do you mean by the lifespan? If we talk about the lifespan, इफ़ अगर मैं कहूँ किसी पर्सन से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन या किसी नॉन साइंस स्टूडेंट से कहूँ या नॉन बायो स्टूडेंट से कहूँ कि लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या होता है सो वो कहेगा कि इट इज़ द टाइम पीरियड ये एक टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द बर्थ टू टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ अ नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द लाइफ स्पैन. In this, we included one word that is a natural word. In this, the missing word is a natural, and we added this the word natural. So the lifespan, so the definition of the lifespan is completed. So we defined the lifespan according to the biology book. So we said that the time period from the birth, the time period from the birth to the natural death of the organism that is known as the lifespan. किसी भी ऑर्गेनिज्म का टाइम पीरियड फ्रॉम टू इट्स बर्थ जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. हम अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई पर्सन सड़क पर जा रहा है रोड पे ट्रैवल कर रहा है अगर उसकी एक्सीडेंटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है सो वी डोंट सेट दैट इट इंक्लूडेड सो वी डोंट इंक्लूडेड इन द टर्म इज़ द लाइफ स्पैन बिकॉज जो उसकी डेथ हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है वो नेचुरल डेथ अगर नहीं हुई है सो इट इज़ अ नॉट टर्म्ड एज अ लाइफ स्पैन एंड द लाइफ स्पैन इज़ वेरी फ्रॉम शॉर्ट टू द लॉन्ग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन की एक दूसरी इम्पॉर्टेंस या खासियत ये है कि जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट टू लॉन्ग ऑर्गेनिज्म तक वैरी करती ही करती है. For example, the lifespan of the human is different from the comparison of the rabbit, people, tree, any plant, trees, or any organism. So here is the line is written as lifespan is vary मतलब differ करती है from short to the long organism to organism. And the second point of the lifespan is it is not necessarily correlated with their sizes. What is the meaning of this line and what do you understand by this line? The meaning of this line is that there is a no correlation between the size and the size of the organism and their lifespan. Because if I take an example of the crow and the parrot, the size of these two birds have the same size, but the lifespan is a different. And if we take example of the cow and the crow, the cow is the large in the size of the crow, but the lifespan is differ. Crow is have the lifespan is the 15 years and the cow have the 20 to 25 years. So the lifespan is not necessarily correlated with their sizes of the organism. Third example is a mango and the people also included in this. Mango and people tree have the same size, but the lifespan of these trees have the different. And the third point of the lifespan is no organism is immortal except the single celled organism. कोई भी organism immortal नहीं होता है. Means that if anybody, if any person, if any child offspring birth in this world, सो जो उसकी जो डेथ होती है वो डेफिनेटली होती ही होती है. वो कभी भी इमोर्टल नहीं होता मतलब अमर नहीं होता. जो ऑर्गेनिज्म आता ही आता है इस वर्ल्ड में सो उसकी डेथ तो पॉसिबल ही है. सो द ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बट इन दिस केस द एक्सेप्शन इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म
इज इमॉर्टल, मतलब वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है, अमर है। वो कैसे? अगर हम एक एग्जांपल लें अमीबा का, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिजन, इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन, first the amoeba is a mature amoeba that is divided into the two daughter cells. The elongation of the nucleus, second process, the elongation of the nucleus and the cytoplasm. That in the third step, the development of the groove is started. And fourth, the nucleus and the cytoplasm is differ and the not connected from to the organism or the amoeba. Then this single celled amoeba is converted in the two daughter amoeba. तो मैं कहूँ कि ये जो अमीबा था वो पहले ये बना, सेकंड स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, तब जाकर इस टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुआ, जो कि आइडेंटिकल, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड द आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली एंड द मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं. सो वी सेड दैट इट इज़ अ क्लोन ऑफ द मैच्योर अमीबा. So here the definition of the clone is those organisms that are the morphologically and genetically identified to the organism is known as the clones. So जो अमीबा था जो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो जो मैच्योर अमीबा सेल था वो कहाँ गया? यही तो हमारा जाकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी जो पहली वाली बॉडी थी वो कहाँ गई? तो ये हुआ कि इसकी जो पहली बॉडी थी वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अब बचा ही नहीं. तो कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो वो मॉर्टल कैसे हो सकता है, मतलब वो मर कैसे सकता है? सो द मैकेनिज्म ऑफ दिस process is the amoeba is divided into two daughter cells and there is no physical significance is left. तो कोई ऑर्गेनिज्म इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो वो मॉर्टल भी नहीं हो सकता. सो यही है हमारा लाइफ स्पैन का एक वो डेफिनेशन जो कि यहीं पर फिनिश होता है. फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं लाइफ स्पैन्स ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल आई टेक द एग्जांपल ऑफ द एलिफेंट. द लाइफ स्पैन ऑफ द एलिफेंट इज़ 60 to 90 years. क्रो का 15 years and the rose is 5 to 7 years. They can survive 5 to 7 years. And banana is 25 years. Butterfly is 1 to 2 week. Parrot is 140 year. That is a very huge years. And the banyan tree is 200 to 300 years. Crocodile is 60 years. लाइफ स्पैन के ख़त्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है रिप्रोडक्शन. वो है रिप्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी. चैप्टर 1 इज़ अ रिप्रोडक्शन. एंड what do you mean understand by the reproduction? According to this definition, reproduction is defined as an biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. What is a reproduction? रिप्रोडक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड द रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन द बायोलॉजी. रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करता है. गिव राइज कौन से ऑर्गेनिज्म? यंग वंस या ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करता है जो कि होते हैं सिमिलर अपने ही पेरेंट्स से. दैट इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन. इनके कुछ ही करेक्टरिस्टिक फीचर पूरी तरह नहीं, कुछ करेक्टरिस्टिक ही इन्वॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग में. ये नहीं कि पूरी तरह ही उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता. ये सिमिलर होते हैं, उनकी तरह सिमिलर होते हैं, पूरी तरह नहीं दिखते. अब है सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन इनेबल्स टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो व्हाट इज़ द बेसिस एंड व्हाट इज़ द strategy to do the reproduction?
रिप्रोडक्शन इनेबल्स करता है कंटिन्यूटी को, स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को ये इनेबल करता है जनरेशन टू जनरेशन। कोई ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में आया, बर्थ लेता है, तो वो होल द अपने टाइम पीरियड में वो ज़िंदा नहीं रह सकता, उसकी कभी ना कभी तो डेथ होगी। अगर वो रिप्रोड्यूस करे तो उसकी जो स्पीशीज़ है वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहेगी। सो इट द benefit of the reproduction is, and here the question is also made that what is the benefit of the reproduction. So the reproduction enables continuity of the species, continuity को maintain करता है, continuity of the species from generation to generation. And the reproduction, it is one of the fundamental attribute of the living organism. ये एक fundamental attribute होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये पूरा करेक्टरिस्टिक फंडामेंटल फीचर नहीं होता, इट इज़ ओनली द फंडामेंटल एट्रीब्यूट। कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई ऑर्गेनिज्म अगर स्टेराइल है, तो हम ये नहीं कर सकते, यह नहीं कह सकते कि वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली ज़िंदा है ही नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट attributed as a fundamental attribute of the living organism. अभी कंटिन्यूटी को रिप्रोडक्शन कैसे मेंटेन करता है, अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग इज डेवलप्ड, देन दे इट विल ग्रो, फिर ये मैच्योर होगा, प्रोड्यूस कर, मैच्योर होने के बाद ये अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो डेट रिप्रोड्यूस इज द ऑफस्प्रिंग। सो इससे कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। ऑफस्प्रिंग से ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद वो मैच्योर होगा, फिर वो प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ एंड जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी इससे। अब हमारा अगला टॉपिक ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. There are the 7 basic difference in the sexual reproduction and the asexual reproduction. First point is it is found in the almost all the animals, plants and other life forms, included fungi, bacteria, protist. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर मैं इसको सिंपली बताऊँ तो इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट, ये लगभग सभी एनिमल्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड करते हैं फंजाई को भी, बैक्टीरिया को भी एंड प्रोटिस्ट को भी, प्रोटिस्टा जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, how is differ from the sexual reproduction. So the first point is it is found in the lower animals and plants, fungi, bacteria, protozoa. ये प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया जिनको हम नहीं देख सकते, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज sexual reproduction is a biparental process. In the sexual reproduction, 2 parents are involved, but in the asexual reproduction, a uniparental process, single parents are necessary for this process of the asexual reproduction. And the third is a male and female gametes are formed. In the sexual reproduction, male and female gametes are formed. The male gamete is a sperm and the female gamete is ovum or the egg. In asexual reproduction, gametes are not formed. इसमें gametes formed नहीं होते. And the fourth point of the sexual reproduction is germ cell act as a reproductive unit. In the sexual reproduction, in germ cell रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। इनके ऊपर एक जर्मिनल लेयर होती है और एक जर्म सेल प्रेजेंट होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब जो कि रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनके पास जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक्ट करते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट को बर्थ करते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन अकर होती है। जर्म सेल से जैसे कि मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। सो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, germ cell is involved for the formation of the reproductive units, and the asexual reproduction, somatic cell act as a reproductive unit.
The fifth point is a fertilization of the male and female gamete occur in order to obtain zygote. In the sexual reproduction, fertilization occur होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की क्या ऑब्टेन करने के लिए, जाइगोट को ऑब्टेन करने के लिए. बट इन द asexual reproduction, no fertilization is occur. No fertilization is occur.